everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are really enjoying this journey together of becoming better at writing, speaking and understanding English. नहीं, आज कोई मेकअप ट्यूटोरियल तो नहीं है, पर आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो है इनफॉर्मल लेटर। Sincere thanks to the one who are coming back to my channel and heartiest welcome to the ones who are coming to my channel for the first time. Let me introduce you myself. My name is Samriddhi. I am a practicing advocate of Delhi High Court and District Courts. This journey of teaching online has begun because of popular request of my students that they want me to be there with them all the time, but I can't be. And especially the students who are away from me, who can't meet me in person, who can't come to my place to study, but they really enjoy taking my classes, especially during the COVID. So this is a small initiative like this to reach out to many more students, whether it be school-going children, teenagers, adults who are working professionals and really want to work on their language skills, housewives who are so occupied that they don't have time to take my classes, and for anyone who wants to sit home and enjoy learning English, because whatever be your age, learning always makes you feel better. Yes? Just let me know if you're right in my understanding. So what was the word I had given to you all in the last class? The word was motivational. So what is the meaning of motivational? What did you find out? Let me know in the comment box. Okay? Today's topic is informal letter. So we are on a series to complete writing skills, especially targeting middle school. Okay? And in this series I have already made one video for diary entry, which has got really good views, and I think it was a very good video that I shot. Second, we have short notice writing, and third one is this, informal letter. Informal letter क्यों लिखते हैं, पहले ये समझते हैं. So इसको informal इसलिए कहते हैं because it is written to your relatives. ठीक है, स्पेशली जो क्वेश्चन पूछते हैं, अंकल, aunt, father sometimes, your cousins, ठीक है, then your friends, let us go to your grandparents also, for grandparents को तुमको इतना आता है, and then maybe there is this concept of pen friend. जैसे आजकल सोशल मीडिया फ्रेंड है जिनसे आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड तो हैं पर कभी मिले नहीं हैं, वैसे ही पहले के ज़माने में कॉन्सेप्ट होता था पेन फ्रेंड. आई एम नॉट श्योर ये कॉन्सेप्ट अभी भी कितना वायबल है. आप लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हो, बट यू एक्सचेंज लेटर्स. आप लोगों ने लंच बॉक्स देखी है, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है. ठीक है, कभी कभी आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत तो होती है, पर आप उनसे मिल नहीं सकते या फिर आप नहीं जानते कि वो कौन है. तो पेन फ्रेंड का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले के ज़माने में बहुत कॉमन था, जैसे आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया पर टेक्सटिंग करना. बट आई सिंसियरली बिलीव कि लेटर राइटिंग अपने आप में आर्ट है, और ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है. अभी तो ईमेल आ गए, कॉल्स इतने आसान हो गए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, वॉइस नोट भेज दिया, ये जब वीडियो कॉल कर लिया. हॉस्टल से भी वीडियो कॉल का टाइम तो मिलता ही है, इजीली कॉल कर सकते हैं. फिर अब के ज़माने में लेटर राइटिंग पढ़ाने का क्यों है कॉन्सेप्ट? हो सकता है और पीरियड ऑफ टाइम ये वैनिश हो जाए. अब ह्यूमन राइटिंग भी आने लगी है सिमिलर लाइन्स पे. ठीक है, कुछ स्कूल्स में थैंक यू नोट भी इंट्रोड्यूस हुआ है. बट आई स्टिल बिलीव इन फॉर्मल लेटर राइटिंग ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है डायरी एंट्री की तरह. डायरी एंट्री में आप अपने आप से बात कर रहे हो, और उसमें आपकी फ्रेंड होती है डायरी. ठीक है, उसमें आप बिल्कुल अपने इंटीमेट, बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लिखते हो. इनफॉर्मल लेटर में आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो अपने किसी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने कजन्स के साथ. ठीक है, या फिर किसी ने आपको कोई गिफ्ट भेजा है, अब तो हम तुरंत वीडियो कॉल कर लेते हैं, थैंक यू, देखो आपका गिफ्ट हमें कैसा लगा. तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हो पाता था. तो हम अपने इमोशंस को लिख कर एक्सप्रेस करते थे. So it's an expression of your emotions. ठीक है, sometimes हम गाइडेंस भी देते हैं थ्रू लेटर्स. कुछ लेटर्स जो है ग्रेटफुलनेस के लिए होते हैं, ग्रेटफुलनेस.
₹50 का पेयर है, देखिए शुभ लाभ। ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हम क्यों लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। चलिए अब इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर ये इसलिए क्योंकि इसमें हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। I'll clean it up in the next class. अब चलें इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले स्कूल के लिए एग्जामिनेशन हॉल, ये फॉर्मेट में बता रही हूँ, एग्जामिनेशन हॉल या फिर सेंडर्स एड्रेस। सेंडर वो होता है जो भेज रहा है। अब मैं क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन में पहले ही देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि मेरे छोटे भाई के मिड टर्म एग्जाम है, ठीक है। मैं रहती हूँ दिल्ली में और मेरा भाई मध्य प्रदेश में या मणिपाल में रह के पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। मुझे उसको एक लेटर लिखना है, उसको गाइड करते हुए कैसे उसको अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो बेसिकली ये लेटर कैसा हो गया, गाइडेंस लेटर हो गया, एल्डर से यंगर को, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल जनरली बच्चों को बोलते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन में जो एड्रेस मेंशन होता है वही एड्रेस लिखना होता है। और हर बार हम दिल्ली का पिन कोड नहीं लिखेंगे। अगर आप अमृतसर में रह रहे हैं, अमृतसर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्लीज़ अमृतसर का पिन कोड लिखिए। अगर पिन कोड नहीं पता है तो पंजाब, ठीक है, या फिर कुछ भी मन से उठा के लिख सकते हैं, पर प्लीज़ दिल्ली 87 मत लिखें, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोटी लीगल लाइन दे। अब देयर इज अ स्टूपिड क्वेश्चन दैट पॉप्स अप, अगर हमने लाइन लीव नहीं किया तो क्या हो? हाँ, नहीं करेंगे। मुझे गिव स्पेस क्योंकि आप एक नई हेडिंग लिख रहे हो, आप एक नई चीज़ लिख रहे हो, दैट इज व्हाई यू लीव अ स्पेस, ताकि क्लमजी ना हो, ठीक है। सो यू राइट डेट, डेट का फॉर्मेट ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट September and 2024, or you can write date like this, 24/9/2024, depending upon the space and speed. एंड वक्त पे लेटर पे पहुँचा हो तो ऐसे लिख के छुटकारा पा लेना, ये लिखने मत बैठना है कि तुम लेकर ऑर्डर है। एग्जामिनेशन हॉल और डेट, ठीक है। सिस्टम में I'm waiting for the date. I hope you guys can see my board clearly. Let me check if the board is coming clearly or not. It's not that clear. Wait. So I think this frame is better now. My board looks clear also. Sorry for the disturbance. Right. So first there is examination hall, sender's address. Okay, whatever is given after the question paper. Be careful when you read the question. Then you write the date in any format as I have prescribed. And I am sure that you are making notes. Okay. Now when we write dear. Okay. So I am writing to my younger brother. His name is Shubham. I know every house is a Shubham. So my younger brother's name is also Shubham. Okay, you could write into anyone that is your question paper's demand. So maybe for example, the question paper specifies that you have to write to a particular person, तो एक बार चेक कर लेना कि किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम तो नहीं दिया। अब देखो, सबसे पहले अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या पूछते हैं, और भैया कैसे हो, सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, और बताओ क्या चल रहा है? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ऐसे ही हम किसी भी टॉपिक पर बातचीत शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेटर में आप सामने वाले से बात ही कर रहे हैं, बट थ्रू रिटन मोड, ठीक है। सो डियर शुभम, आई होप दिस लेटर finds you in of health. Think of health एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि मुझे आशा है कि तुम वहाँ कुशल मंगल होंगे, तुम्हारी तबीयत ठीक है। एक बार ये टॉपिक भी करेंगे,
ठीक है, कैसे हम अलग अलग कलर से अलग अलग मीनिंग को रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रे मैटर, आई एम फीलिंग ब्लू टुडे, इसका मतलब आई एम फीलिंग डल टुडे। तो पिंक इज द कलर ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, इट्स अ कलर ऑफ वेलबींग। आई होप दिस लेटर फाइंड्स इन पिंक ऑफ हेल्थ। I am also keeping well here. हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझे तुम्हारा लेटर मिला जिसमें तुमने अपनी एग्जामिनेशन एंग्जाइटी को एक्सप्रेस किया है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं ये लेटर तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें गाइड कर सकूँ तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। सो आई एम राइटिंग कि मेरे भाई ने मुझे लेटर लिखा है तो उसको एग्जामिनेशन एंग्जाइटी हो रही है, मैं तो उसकी हेल्प करूँगा नेसेसरीली, प्लीज डोंट हेल्प योर यंगर ब्रदर सिस्टर्स अननेसेसरीली। आई एम ऑल्सो कीपिंग वेल हियर। आई रिसीव्ड your letter I received your letter wherein you expressed your examination anxiety as the dates of your midterm exam is approaching near. You can turn on caption in case you can't hear me properly or you can't see. ठीक है, तो पहले वाले पैराग्राफ में दिस इज पैराग्राफ 1, ठीक है, दिस इज पैरा 1। पहले वाले पैराग्राफ में हम जनरली फॉर्मल लेटर को 3 पैराग्राफ में देते हैं। तो पैराग्राफ 1 में हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी वेलबींग, सामने वाले की खैरियत पूछते हैं, अपनी खैरियत बताते हैं और टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। So para number 1 is for well-being and trying to understand the topic or introducing the topic. I read it out again for you. I hope this letter finds you in pink of health. I am also keeping well here. I received your letter wherein you expressed your examination anxiety as the dates of your midterm exams as the date of your midterm exams is approaching near. ठीक है, या near भी लिख सकते हैं। I hope you are writing simultaneously. I am writing this word again. Please जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे लिख लिया करो, जल्दी सीख जाओगे। लिखोगे नहीं तो समझोगे कैसे? Simultaneously. I hope the spelling is clear to you. मैंने एक वीडियो में गलत लिखा था, बताना करेक्टेड इन द कमेंट्स। ठीक है जी। आई रिसीव योर लेटर wherein you expressed your examination anxiety as the dates of the midterm exams is approaching near. ठीक है। अब हम आ जाते हैं पैरा 2 पे। पैरा 2 में हम क्या लिखेंगे? पैरा 2 इज मच मोर डिटेल, ठीक है। पैरा 2 टॉक्स अबाउट टॉपिक इन डिटेल, टॉपिक इन डिटेल। नो, आई एम नॉट राइटिंग विथ माय fingertips. I am using this teeny tiny chalk, if you guys can see. Teeny tiny chalk. Okay, so para 2. I understand that exams bring a lot of stress. There is performance pressure. There
performance pressure. I would suggest you to calm down and trust the process. You should exercise daily. You should exercise daily to feel positive and channelize your एनर्जी. तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि तुम पॉजिटिव महसूस करो और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन दे सको. वोकैबुलरी में अच्छी खासी यूज़ कर रही हो. आई बिलीव क्लास 6 का कोई बच्चा जो होगा उसके लिए अच्छा लगेगा. ठीक है. टू फील पॉजिटिव एंड चैनलाइज योर एनर्जी. प्रैक्टिस डेली and keep yourself mentally free. मैं तो यही समझ पाएंगे अपनी लाइफ में कि जब भी एग्ज़ाम हो तो टेंशन लेने की बजाय हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. कुछ लोग अपने बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखते हैं कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट. कुछ नहीं करना. एक चैप्टर है उसको पढ़ना है. इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड इन वन गो फॉर 3-4 वीडियोस. दोस्तों को तो फ़ोन करना ही नहीं चाहिए. क्या मैं वक्त पे पढ़ती थी, मेरे जो दोस्त पहले पढ़ते थे वो मुझे फ़ोन करते थे. समझी थी प्रिपरेशन हो गई, मैंने शुरू ही नहीं करी प्रिपरेशन. अब मैं क्लास में फर्स्ट आती थी इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बहुत रिलीजियसली पढ़ती थी. मैं थोड़ा थोड़ा आराम से मैं सो जाती थी. बहुत बार पढ़ती थी स्पेशली हिस्ट्री के एग्जाम में सब सो जाती थी. तो मैं किसी से बात नहीं करती. कॉलेज में भी नो फोन्स, नथिंग. ना मैं किसी से पूछती थी ना मैं किसी को कुछ बताती थी. आज जब एग्ज़ाम के वक्त हम मिलते थे तब मैं थोड़ा बहुत सही बताती थी. अदरवाइज प्लीज़ डोंट कॉल योर फ्रेंड्स अननेसेसरी एंड डोंट टेक अननेसेसरी कॉल. वरना वो अपना प्रेशर आपको देगा, अपना प्रेशर उसे देगा. सो चिल. ठीक है. कीप योरसेल्फ. अपने आपको मेंटली फ्री रखें, शांति से काम करें. ठीक है. पेरेंट्स को मैं यही एडवाइस करूँगी अपने बच्चों को बिल्कुल टीवी देखने से या बिल्कुल ड्रॉ करने से, बिल्कुल अपने फ्रेंड से मिलने से या खेलने से ना रोकिए. उससे कुछ मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे. आप एक और एक्टिविटी ज़रूर कीजिए जो आपको मेंटली फ्री रखे. और आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए रोज़. उसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को एग्जाम एंजाइटी से बचा सकें. टू फील द प्रेशर इज ओके बट टू गिव अप टू दैट प्रेशर इज नॉट ओके. आई होप my suggestions would help. ठीक है जी. ये हमारा हो गया पैरा 2. पैरा 2 थोड़ा बड़ा होता है. ठीक है. दिस इज आवर पैराग्राफ 2. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल हियर. दिस इज आवर पैरा 2. I hope you are writing simultaneously. Right, in case my writing speed is too fast and you please pause it and then write. Okay, but please write simultaneously. I am not sure if my videos are getting too long. In case they are and you are not able to cope up, then please let me know. I'll try to make shorter ones. ठीक है जी. I think I should erase it all. Good job. Paragraph 3 करो. I am not erasing it. Let us go for paragraph 3. ठीक है. सो
तो व्हाट इज पैराग्राफ 3 से? अब हमने चला अच्छा भाई ठीक है, तो ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, चलिए इस बारे में बात करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हमने खूब सारी बातें भी कर ली इस टॉपिक के ऊपर, हमने सजेशंस भी दे दिए। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या बातचीत कैसे ख़त्म करते हैं? अच्छा भाई अपना ख्याल रखना, घर में सबको मेरी तरफ से हाय हेलो कहना। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी हम ऐसे ही करते हैं ना, तो पैराग्राफ 3 में भी हम ऐसे ही कॉन्वर्सेशन करेंगे। हम क्या लिखेंगे? पे माय regards to uncle and aunt. You can add this line here in the second paragraph. I am eagerly waiting to see you. I am eagerly waiting to see you. कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ही बोर्ड से सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, वो ये कॉपी ना करें पैरा 1 पैरा 2, प्लीज़ वो कॉपी नहीं करना है, वो चाहने से इसलिए क्वेश्चन को ना पूछें प्लीज़। ठीक है, दिस इज पैराग्राफ 3 P3। ठीक है, ये हम मार्जिन में लिख सकते हैं। पे माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, खत्म। और अगर छोटी बहन लिखना है इन लॉस ऑफ लव टू चुटकी और छोटा बहन फैन। दिस इज नॉट नेसेसरी, नॉट। हिंदी में लिखते हैं ऐसे, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। ठीक है, अब लास्ट में क्योंकि हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो योर्स अफेक्शनेटली AFFECTION, योर्स अफेक्शनेटली या फिर लविंगली या फिर लविंगली। ठीक है, ओके लिख सकते हैं बस योर्स लविंगली और अफेक्शनेटली whatever be your name, ABC, योर्स अफेक्शनेटली और लविंगली। ठीक है, ये आपका लेटर हो गया। ठीक है, और अगर आप पापा को लिख रहे हैं तो योर्स स्पेशली लिख सकते हैं, बाकी इनफॉर्मल लिख। ठीक है, ये हो गए आपके एग्जाम के सजेशंस। आई एम राइटिंग सम टॉपिक्स फॉर यू टू राइट। आई एम नॉट श्योर इफ आई राइट अनदर लेटर आल्सो फॉर यू गाइस। Just let me know in case you want me to write more letters for you or more, and in case you are enjoying this pattern of teaching, which is new. I thought I would be just sharing the format, but I am writing 1 or 2 examples. For notice writing, I have given 2 examples. So for letter and diary entry, I have given 1. But in case you want me to write more, I can do that for you. Let me just tell you again the format. Examination hall or centers. Examination hall or center's address. Don't skip please. ठीक है, इसके बाद डेट, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ देना, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के डियर ABC, फादर मदर ग्रैंडफादर अंकल। 4th स्टैंडर्ड वालों को जनरली एक टॉपिक आता है कि आपको गिफ्ट मिला, उसको थैंक यू लिखते हुए अपने अंकल या आंट को जिसको भी लेटर आप लिखिए। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द टीचर हैज टॉट यू, आई थिंक कुछ स्कूल्स में एक ही पैराग्राफ में लिखना सिखाते हैं। सो द कॉन्टेंट रिमेन्स सेम, लिखना आपके उस तरीके से है, पहले आप हाल चाल पूछेंगे, फिर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, थैंक यू, मुझे पहले से ये गिफ्ट चाहिए था, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे एक गिफ्ट भेजा। ठीक है, थर्ड में होपिंग टू सी यू सून, पे माय रिगार्ड्स। ठीक है, टू आंट और व्हाटएवर, फिर योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, व्हाटएवर योर नेम। ये ABC। देन पैरा 1 में आप क्या करते हैं? वेलबींग एंड टॉपिक इंट्रोड्यूस। writing some good on board, just let me know if you're writing. Like me, or in case you believe my writing is not clear, it's very cursive. कि हमें बहुत फास्ट लिखना होता है, नॉर्मल का टाइम होता ही नहीं। पैरा 2, you give details of the topic. ठीक है, now पैरा 3। पैरा 3 जब भी आप लिखें किसी चीज़ का कंक्लूजन होता है, उसमें क्या कंक्लूड करते हैं?
पे रिगार्ड्स या फिर मीट यू सून। मीट यू सुना तो इसमें लिख सकते हैं मीट यू सून एंड देन योर्स affectionately, yours affectionately, yours lovingly, yours lovingly। ये L है H नहीं है। मेरे पास एक नई स्टूडेंट है, उसने मुझे कहा कि ये L है या H है। एंड whatever they are, X Y Z। क्वेश्चन पेपर एक बार चेक कर लेना कि उसमें कुछ नाम तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आप चेक कर लेना, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपने फॉर्मेट में चेंजेस कर लेना, डिपेंडिंग कितने मार्क्स का है वो अपना कर लेगा। बढ़ा लेगा, मैंने एक 6 स्टैंडर्ड के बच्चे के हिसाब से लिखा है 5th और 6th, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने वर्ड्स वैसे ही यूज़ किए हैं। इन केस यू वांट टू यूज मच मोर रिफाइंड लैंग्वेज यू कैन डू दैट, पर पेपर में ये करने मत बैठना कि वोकैबुलरी के चक्कर में बस सोचते ही रहेगा क्या क्या लिख सकते हैं। फैंसी वर्ड्स यूज देखो, पेपर में लिखते वक्त हमें बहुत फैंसी वर्ड्स नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन हैज़ टू बी क्लियर, जो आप कहना चाह रहे हो वो क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए। मेरे एक स्टूडेंट ने तो उसने बहुत सारे हैवी वर्ड्स लिख दिए लेटर में, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या लिखा, व्हाट इज़ द मीनिंग। आप वर्ड्स यूज़ कीजिए, अच्छी लैंग्वेज यूज़ कीजिए, अच्छे फ्रेजेस यूज़ कीजिए, पर कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। इन केस यू वांट टू मीट मी फॉर रेगुलर क्लासेस देन प्लीज़ रिंग मी अपॉन माई नंबर और यू कैन DM me। And in case you want to join my AP Rajasthan 2025 batch, then please let me know. I would be more than happy to be a part of your family. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ या कोई और सीरीज स्टार्ट करूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मीनवाइल कीप फॉलोइंग द राइटिंग स्किल सीरीज। बाय बाय।